Good morning everyone. How are you? I hope everyone is fine at home. So class, in the last class we have seen computer system, where we have seen what is hardware and software, a little bit about software, and we have seen the use of CPU, how CPU works with the help of arithmetic logical unit and a control unit. So class, today I am going ahead. We are going to explore today's software. So software is a set of computer program that perform a particular task. मोबाइल फ़ोन में हम सॉफ्टवेयर को ऐप के नाम से भी जानते हैं. When it requires, only then we download it. So class, here in the computer we have multiple types of software. So software is divided into three parts: software, system software, application software, utility software. System software again divided in two parts: operating system, language processor. Language processor is divided in three parts: compiler, assembler, interpreter. If I come to application software, it is divided into two parts: general purpose software and customized software. So let's see how it is works. So class, first is system software. It means कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर. देखो, कंप्यूटर अगर चल रहा होगा, कुछ काम से कंप्यूटर ऑन होगा, तभी तो हम कुछ सॉफ्टवेयर उसके ऊपर इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हैं. अदरवाइज कंप्यूटर इज़ नॉट वर्किंग, हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म द टास्क. So system software is set of one or more program designed to control the operation of a computer system. So operating system and language processor comes under the category of system software. So operating system is the first software people used to say that has to be installed in your laptop or computer. क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं. ठीक है क्लास, ये स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप. ये कैन यू सी दिस इमेज? दिस इमेज इज नोन एज विंडोज. तो मेरे लैपटॉप में विंडोज 10 है, दैट इज सिंबल ऑफ अ विंडोज. अगर मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा, ये आइकन्स नजर नहीं आएंगे, ये स्क्रीन ही नहीं आएगी. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ operating system. So operating system is a master control program that runs the computer. When computer is switched on, operating system is the first program which is supposed to be loaded in your computer memory. What are the examples of Windows, Unix, MS-DOS? Language processor. So class, language processor is what? See, language is just a medium. For example, Hindi, English, sign language. Those who are deaf and dumb, they use the sign language. What is the purpose of a language? It's just a medium through which we can share our views and thoughts. Similarly, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं उसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है उन्हें हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ठीक है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो कंप्यूटर लेवल पे लिखी जाती है, जैसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं. बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 और 1, और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश में लिखी जाती है. बट डोंट फॉरगेट, आवर कंप्यूटर विच इज़ माई CPU अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज विच इज़ 0 और 1. सो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या काम करता है, लेट्स सी. The translator program that is used to convert source program written in high level language to machine code language is called language processor. So class, जो भी प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, वो जो भी हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, जब भी आप पेमेंट काउंटर पे जाते हो, वहाँ वो खड़े होते हैं ना स्कैनर के साथ, वो स्कैन करते जाते हैं, कंप्यूटर में अपने आप फीड होता जाता है. तो दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर हैज़ बीन मेड बाय वन लैंग्वेजेस, मल्टीपल लैंग्वेजेस. दैट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस आर नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजुअली लिखी जाती है इंग्लिश में, और आपका कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज विच इज़ 0 and 1. सो जब हम इंग्लिश की लैंग्वेज लिखते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के लिए, उसे हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज. क्या लैंग्वेज बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को हमें कंप्यूटर तक पहुंचाना है, और कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज. तो हमें बीच में ज़रूरत पड़ती है ट्रांसलेटर की. तो यही वो ट्रांसलेटर है. जो मैंने कोड लिखा है उसे हम सोर्स कोड लिखते हैं. जनरली वो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, इट मीन्स इंग्लिश, और उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मशीन कोड में, मतलब 0 और 1. So computer understands instruction in the form of machine code that is 0 and 1. Program are written in English like high level language, उन्हें source code भी कहा जाता है. So source code हमेशा किस में कन्वर्ट होते हैं? मशीन लैंग्वेज में. ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर्स ऑफ 3 टाइप. अगर ट्रांसलेटर आपको चाहिए तो 3 टाइप के ट्रांसलेटर है. पहला है असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर. असेंबलर वो है जो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में. कंपाइलर और इंटरप्रेटर ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, ये भी ट्रांसलेट करते हैं हाई लेवल इंग्लिश लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में विच इज़ 0 और 1. इंटरप्रेटर भी सेम काम करता है, लेकिन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है. इंटरप्रेटर जो ट्रांसलेट करता है, अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा है वो 10 लाइन का लिखा है, सो इंटरप्रेटर इज गोइंग टू ट्रांसलेट 1 लाइन आफ्टर अनदर, विच इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग.
कंपाइलर क्या करता है, 10 लाइन्स को एक साथ ही उठाएगा एंड एट वन गो इट ट्रांसलेट फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज विच इज 0 and 1. सो तभी इंटरप्रेटर थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है. करंटली वी ऑल आर वर्किंग विद द कंपाइलर. Okay, application software. So class, application software is always based on the user. It is only based on the user specific. For example, अगर आप for example if you are working at home, your father is an accountant, ठीक है, तो उनके लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर मिलेंगे वो एक्सेल होगा, वो टैली होगा, बिकॉज वो उनके हिसाब से हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, ठीक है, यू वॉन्ट टू मिक्स मल्टीपल म्यूजिक, सो आपके लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर मिलेंगे वो डीजे रिमिक्स, विंडो मीडिया प्लेयर, इस टाइप के सॉफ्टवेयर मिलेंगे, VLC मीडिया प्लेयर, बिकॉज यू आर यूज टू दैट. ठीक है, सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज यूजर स्पेसिफिक. एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट आपको हर लैपटॉप में अलग अलग सॉफ्टवेयर मिलेंगे. ठीक है, सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म अ सर्टेन टाइप ऑफ वर्क. दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर pertains to one specific application. For example, software written to calculate salary of the school employees cannot be used to prepare school result. Of course, yes. So application software can be classified as a general purpose software and specific software application. General purpose software means it include MS Word, ठीक है, Excel, राइट, दिस काइंड ऑफ लाइक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर. लेकिन मुझे स्पेसिफिकली एक कंपनी के लिए मंगवाना है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव ओपन अ मॉल ऑफ अ 1 floor. उस मॉल के अंदर आपने 20 कंप्यूटर सिस्टम लगवाने हैं और 20 कंप्यूटर सिस्टम में एक जैसे ही सॉफ्टवेयर होने चाहिए, लेकिन आपको वो सॉफ्टवेयर कहीं से मिलेगा नहीं. यू कांट डाउनलोड इट फ्रॉम इंटरनेट. आपको पर्टिकुलरली एक कंपनी में जाना पड़ेगा, जैसे कि IBM, HCL, these are the company who also creates a software. These are the very MNC, multinational companies. So आपको जाना पड़ेगा और लोकल कंपनीज आर ऑल्सो देयर, वहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट बतानी पड़ेगी, उसके बेस पे वो आपके लिए ही एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होगा. सो दीज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज नोन एज स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर. और जनरल पर्पस क्या होते हैं, जो भी हम कंप्यूटर खरीदते हैं या लैपटॉप खरीदते हैं, कुछ कॉमन सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल होते ही हैं या इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, उन्हें हम जनरल स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कहते हैं. यूटिलिटी प्रोग्राम्स. A utility program is used to perform maintenance work on a system or on the computer. Example, antivirus. अब देखो, यूटिलिटी का मतलब होता है एक्स्ट्रा फीचर. जब भी हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं हम हमेशा पूछते हैं, वी ऑलवेज यूज टू डू बार्गेन इन अ फॉर्म ऑफ अ डिस्काउंट. वी ऑलवेज आस्क एनी डिस्काउंट. सिमिलरली व्हेन वी आर यूजिंग अ कंप्यूटर, जब भी हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हमें भी तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए ना, विच विल प्रोटेक्ट आवर्स कंप्यूटर. सो फर्स्ट इज एंटीवायरस. एंड व्हाट इज एंटीवायरस? दिस प्रोग्राम हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग वायरस. जब भी हम इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करते हैं, कुछ भी हार्मफुल चीज़ हो तो वो आपको डिटेक्ट कर देता है एंटीवायरस, जिससे कि वायरस कंप्यूटर में नहीं आता और आपका कंप्यूटर परफेक्टली वर्क करता है. तो एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस आर नॉर्टन, मैकेफे. दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल. फाइल मैनेजमेंट टूल, ठीक है ना, these tool helps in storing, searching and sorting file folder in the system. For example, class, please have a look here. Can you see it here? ठीक है, ये मेरा है फाइल विंडो, फाइल एक्सप्लोरर. इसके अंदर व्यूज़ में जाके मैं अपना यहाँ पर व्यूज़ चेंज कर सकती हूँ कि मुझे कैसे फाइल्स का कंसेप्ट देखना है. ठीक है, तो यही है हमारा विंडो एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स. ठीक है, अच्छा, फाइल मैनेजमेंट टूल में ये भी बताया गया है कि आप इजीली फाइल को सर्च कर सकते हैं. सो क्लास, इसमें अगर मुझे कोई चीज़ सर्च करनी हो तो मैं इजीली स्लैश लगाकर चेक कर सकती हूँ कि demo2 नाम से है कोई फाइल या नहीं है, या demo.py नाम से कोई फाइल है या नहीं है. इफ इट इज देयर तो बता देगा, अदरवाइज बोल देगा कि इट इज़ नॉट देयर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू सर्च कि prog4 से कोई फाइल है या नहीं है, सो सिंपल आई विल टाइप इट हेयर prog4.py. इफ फाइल इज देयर तो वो दिखा देगा, अदरवाइज जैसे कि ये फाइल थी यहाँ पर तो इसने ओपन कर दी. सी, दिस इज द फाइल विद द नेम prog4. ठीक है, कंप्रेशन. सर क्लास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेशन? सी, मेरा एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है जिसका नाम है पाइथन प्रॉग्स. आई जस्ट वेयर इट इज, ये आप देखो इसमें कितनी सारी फाइल्स हैं. आई जस्ट चेंज द व्यू ऑफ दिस. आई एम मेकिंग इट टू लिस्ट. देखिए कितनी सारी यहाँ पर फाइल्स हैं. अब मुझे ये फोल्डर अगर किसी को भेजना हो तो मुझे एक एक फाइल अटैच करनी पड़ेगी. तो मैंने इसका शॉर्टकट क्या लिया,
मैंने इसका शॉर्टकट लिया है कि पाइथन प्रोग्राम्स पे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगी, राइट क्लिक करूँगी, सेंड टू में आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कंप्रेशन। इससे क्या होगा, एक इसी के साथ एक और फाइल बन जाएगी, जिप हो जाएगी। कैन यू सी दैट जिप फाइल ओवर है, ठीक है ना। इससे मुझे बेनिफिट क्या हुआ, अब मैं किसी को भी मेल कर सकती हूँ, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं मुझे सेपरेटली सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्रेशन. So these all utility programs which are very useful for us. Disk management tool, disk cleaner, disk fragmenter and backup. So class एक बात बताइए, this is my C drive. This is go to this machine. These are my drive, C drive, D drive, E drive. ठीक है. So class C drive में आप देखो कितना फिल्ड हो चुका है, D drive, E drive. सो क्लास ये मेरा डेस्कटॉप है, जब मुझे मन किया मैंने फाइल बनाई, जब मन किया मैंने डिलीट कर दी, ठीक है. सो इट मीन्स व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड आई एम क्रिएटिंग अ फाइल, व्हेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड आई डायरेक्टली डिलीटिंग अ फाइल, ठीक है. जैसे कि ये आई एम डिलीटिंग दिस वन, आई एम डिलीटिंग दिस वन ऑल्सो. सो दीज आर द फाइल आई एम डिलीटिंग. सी ये डिलीट हो गई, ठीक है ना. लेकिन ये तो दिखने में हमें डिलीट हो रहा है, लेकिन इंटरनली ये जो डेस्कटॉप है इट इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट, सी ड्राइव. तो क्लास सी ड्राइव में ये कैसे हो रहा है वो जानने के लिए आप डिस्क फ्रेगमेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्क डीफ्रेगमेंटर और डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन? इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई नई फाइल बनाते हैं सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड में, तो अपने आप ही जो खाली स्पेस है वो एक साइड हो जाता है, फिल्ड स्पेस एक साइड हो जाता है. इससे बेनिफिट क्या होता है, हम जब भी कोई फोल्डर या फाइल पर डबल क्लिक करते हैं तो वो फास्ट हो जाती है ओपन होने में. दैट इज़ द यूज़ ऑफ डिस्क फ्रेगमेंटर. बैकअप, कभी कभी मेरी सी ड्राइव में या डी ड्राइव में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आई वांट टू मेक अ बैकअप. बैकअप का मतलब क्या होता है, मेकिंग अ कॉपी, ठीक है. इसका एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज ये होगा कि कभी भी मेरा कंप्यूटर या लैपटॉप को कुछ हो जाता है तो मुझे डरने की बात नहीं है, बिकॉज उसकी एक कॉपी है. डिस्क क्लीनर, डिस्क क्लीनर क्या करता है, दोज फाइल्स जिनको आपने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया और वो बेकार में बहुत सारे हाई साइज़ की है, हैवी साइज़ की है, तो उन फाइल्स को वो अपने आप ही डिलीट कर देता है. ये ऑप्शंस आपको मिलते कहाँ से हैं, जस्ट हैव अ लुक. गो टू माई कंप्यूटर और दिस कंप्यूटर, राइट क्लिक, ठीक है. गो टू प्रॉपर्टीज, every option would be here. Can you see disk cleanup is also here, ठीक है. You can go to tools, tools में optimize पे अगर आप जाएंगे तो एक और बॉक्स ओपन होके आएगा, इसमें वो पूछेगा optimize. optimize का मतलब fragmentation ही है क्लास. Can you see that? optimize का मतलब क्या है आपका, fragmentation. अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो वो टाइम लेगा, स्टार्ट डूइंग इट विल टेक टाइम, कभी कभी एक एक दिन भी ले लेता है पूरा, ठीक है. कैन यू सी दैट, फ्रेगमेंटेशन से हटके कौन सा वर्ड आ गया, एनालाइज. सो इट इज लाइक आई हैव स्टार्टेड लाइक फ्रेगमेंटेशन इन माई कंप्यूटर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लास? सो दीज ऑल आर द कंसेप्ट विच हेल्प्स अस टू सिक्योर आवर कंप्यूटर. नाउ क्लास टॉकिंग अबाउट अ कंप्यूटर मेमोरी. सो कंप्यूटर की हम बात करते हैं, जैसे हमारे ब्रेन होते हैं जिसमें बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, सिमिलरली कंप्यूटर में भी अपनी एक मेमोरीज होती हैं जिसको वो स्टोर कर सकता है. नाउ हम दो चीज़ों पे, हम भी अपनी जब भी हम डेली ब्रेन में बात करते हैं तो मेमोरी हम भी दो टाइप की अपने माइंड में रखते हैं. एक वो मेमोरी जो बात हमेशा के लिए याद रखनी है, एक वो मेमोरी जो एक कान से सुननी है दूसरे कान से निकाल देती है. सिमिलरली यहाँ पर भी कंप्यूटर टू टाइप्स की मेमोरी पे वर्क करता है. फर्स्ट इज़ प्राइमरी जो टेम्पररी होती है, सेकेंड इज़ सेकेंडरी जो हमेशा आपके कंप्यूटर पे सेव रहती है. जैसे कि आप कोई नोटपैड की फाइल बना रहे हैं, आप उसको सेव कर रहे हैं, तो दैट वुड बी नोन एज सेकेंडरी, ठीक है. लेट्स सी प्राइमरी मेमोरी, जो भी हम प्रोग्राम एंड डेटा जो भी कंप्यूटर में लोड होता है सबसे पहले उसे हम बोलते हैं मेमोरी. यही मेमोरी से डेटा आपके सीपीयू की तरफ प्रोसीड होता है, जिसे हम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं, ठीक है, और कंट्रोल यूनिट कहते हैं. सीपीयू डायरेक्टली जिस भी मेमोरी से इंटरेक्ट करता है वो मेरी कहलाती है प्राइमरी मेमोरी, विच इज़ ऑफ टू टाइप, रैम एंड रोम. रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी. ये रैम की इमेज है क्लास, दिस इज एन इमेज ऑफ रोम. रैंडम एक्सेस मेमोरी क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वॉलेटाइल होती है, ये चेंजेबल होती है एंड स्टोर्स द डेटा टेम्पररी.
Class, please have a look. Can you see my 3 folders are open? My 3 PowerPoint files are open. Can you see that? My email is open. Another error is also there. Another optimizing is also going there. ये जो भी टास्क बार में इतनी सारी चीज़ें काम कर रही हैं, ये कहाँ जाके स्टोर होती है? ये स्टोर होती है आपके रैम में, ठीक है। जब तक मेरा कंप्यूटर पे काम चल रहा है, मैं काम कर रही हूँ, तब तक रैम में इनकी एंट्री होगी। जैसे ही मैं कंप्यूटर को शट डाउन कर दूंगी, रैम भी मेरी ब्लैंक हो जाएगी। So it means when computer is on, it retains the data in it, but as soon as computer shut down, all the content of the RAM would be wiped out. Wiped out मतलब erase हो जाते हैं। इसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले डेटा कहाँ लोड होता है? आपके रैम में, जिससे कि हमारा प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। रोम रीड ओनली मेमोरी है क्लास, ये हमेशा फिक्स रहती है। रीड ओनली मेमोरी के अंदर जो भी डेटा है कभी भी लॉस नहीं होता। जनरली रीड ओनली मेमोरी में कौन सा इंफॉर्मेशन स्टोर होती है? इंफॉर्मेशन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे मैं कंप्यूटर जब भी स्टार्ट करती हूँ, आप देखते हो प्रोसेसिंग आ रहा होता है, सर्कल एक घूम रहा होता है। सो इट मीन्स वो जब भी आप कंप्यूटर लैपटॉप ऑन करते हो तो वो इंटरनली सर्च कर रहा होता है। क्या सर्च कर रहा होता है? कि मेरे लैपटॉप या कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं। ये कौन सर्च करता है? कहाँ इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है? रोम में, ठीक है। तो इट स्टोर्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। When you start up the computer, first you will go to ROM, where computer searches at which operating system need to be loaded so that desktop would be shown, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी तो हो गया। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है। रैम में डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है, लेकिन भाई मैं कोई काम कर रही हूँ फाइल में, मैं चाहती हूँ उस पर कल भी काम करना, परसों भी काम करना, और आई वॉन्ट टू सी इट आफ्टर 1 month ऑल्सो और विद इन अ ईयर ऑल्सो, तो मुझे परमानेंट सेव करना पड़ेगा। तो परमानेंट सेव के लिए हमारे पास किसका कंसेप्ट आता है? सेकेंडरी मेमोरी। सो प्राइमरी मेमोरी का पहली बात तो लिमिटेड डेटा होता है, क्योंकि रैम जो डिवाइस है, एज आई शोन यू इन द फिगर ऑल्सो, 4 GB की मैक्सिमम मिल जाती है, ठीक है। लेकिन हमें 4 GB तो कुछ नहीं होता, आजकल तो लोग टेराबाइट की बात कर रहे हैं, गीगाबाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स अ GB इसके बाद आता है टेराबाइट, ठीक है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं जिसमें बहुत सारा डेटा चाहिए होता है। अगर इमेजिन आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज़, तो मेरे पास तो मूवीज़ ही कितनी सारी होगी, तो मुझे तो बहुत सारा डेटा चाहिए, बहुत सारा एरिया चाहिए जहाँ पर मैं अपना डेटा स्टोर कर सकूँ। So it is a non-volatile or permanent, has large storing capacity and we can extend it also, but it cannot be accessed directly by the CPU। क्यों? क्योंकि ये हम सेव कर रहे हैं। रैम में जो डेटा होता है वो अपने आप सेव होता है, ठीक है ना। जैसे कि हार्ड डिस्क, दिस इज एन इमेज ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को आप इन शॉर्ट C ड्राइव D ड्राइव भी कह सकते हैं। तो ये C ड्राइव D ड्राइव E ड्राइव दिखती है ना, वो एक कैटेगरीज है। किसकी कैटेगरी है? हार्ड डिस्क की। वो हम अपने लिए खुद बनाते हैं। पेन ड्राइव, दिस इज एन इमेज ऑफ पेन ड्राइव। मेमोरी कार्ड, दिस इज इमेज ऑफ मेमोरी कार्ड। CD एंड DVD। CD 700 MB की होती है, जिसका साइज बहुत कम होता है। DVD कुछ हाई GB की भी हो सकती है, जिसके अंदर हम एटलीस्ट कुछ मूवीज भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो CD का अपडेटेड वर्जन यू कैन से इट एज लाइक अ DVD, ठीक है। सो क्लास नेक्स्ट विल फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ मेमोरी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।